dear students, welcome to Dotway Educators again. Now we are going to start your next unit of Fundamentals of Data Structure, which is Unit 9 and its stacks. Well, in this unit, you will learn about the concepts of stacks and what are the sequential and linked list representation of the stacks and what are the various operations that can be performed on this stack data structure, and what is the concept of multiple stacks or multi-stacks, and what are the various applications of stacks which are available. Okay, now we are going to start along with this concept of stack. Well, as we all know that stack comes under the linear kind of data structure. So a stack is defined as a special type of data structure where items are inserted from one end called top of the stack and items are deleted from the same end. बिकॉज जो आपके पास स्टैक है वो एक लीनियर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक सीक्वेंस में आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टोर करते हैं, बट इसमें क्या होता है आपके पास एक ही एंड है. दिस इज नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक एंड आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी इसी एंड से इंसर्ट किए जाएंगे एंड किसी को आपने डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को तो वो डिलीट भी यहीं से किया जाएगा. सो दैट्स वाई स्टैक इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर, जिसको हम लीफो भी बोलते हैं. मतलब कि जो एलिमेंट लास्ट में ऐड हुआ है वो सबसे पहले डिलीट होएगा. लास्ट इन फर्स्ट आउट. So here are some operation that are performed on the stacks, which are, first one is insert an item into the stack, that is known as store, and you can also delete an item from the stack. We can also call it as a retrieve operation, and we can also display the contents of the stack. Okay, and we can also define a stack as stack is an ordered list of the same type of elements. as we know that कि ये एक particular order के अंदर आप एक particular sequence के अंदर आप इसके elements को store करते हो, and it is a linear list where all the insertions and deletions are permitted only at one end of the list. We have discussed this point कि आप इसमें जितनी भी insertions करते हो या जितनी भी deletions करते हो वो एक ही end से की जाती हैं. And stack is a LIFO structure, last in फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है एलिमेंट वो सबसे पहले डिलीट होएगा. एंड इन अ स्टैक व्हेन एन एलिमेंट इज एडेड इट गोज टू द टॉप ऑफ द स्टैक. राइट, जो भी एलिमेंट आपका ऐड होता है सबसे लास्ट में ऐड हो रहा है या वो एक ऑर्डर में ऐड हो रहा है, तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. And here is a little bit definition of stack that you can also follow it. Stack is a collection of similar data items in which both insertions and deletions operations are performed based on the LIFO principle. So here is the two major operations that can be performed on the stack. These are known as, the first one is push and the second one is pop. Push हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? This is used to insert an element. Push function is used to add or insert new elements into the stack. स्टैक की टर्मिनोलॉजी में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का मतलब होता है कि आपने उसके ऊपर एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है. एंड द सेकेंड वन इज पॉप. पॉप फंक्शन इज यूज टू डिलीट और रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. पॉप ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपने किसी भी एलिमेंट को अपने स्टैक में से, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में से उसको डिलीट किया है या फिर उसको रिमूव किया है. Well, here are some conditions that you can check before performing the operations of insertion or deletion or push or pop. Well, when a stack is completely full, it is said to be overflow state, and if stack is completely empty, it is said to be underflow state. Right? अगर आपका स्टैक पूरी तरह से फुल है, उसमें स्पेस नहीं है न्यू एलिमेंट ऐड करने की, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ओवरफ्लो हो गया है. एंड अगर आपका स्टैक जो है वो प्रॉपरली एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको आप डिलीट कर सको, दैट इज नोन एज द अंडरफ्लो स्टेट. Stack allows operations at one and only. We know that. And stack behaves like a real life stack. For example, in a real life, we can remove a plate or dish from the top of the stack only, or while playing a deck of the cards. We can place or remove a card from top of the stack only. Similarly, here also we can only access the top element of the stack.
राइट अगर आपके पास एक पूरा स्टैक पड़ा है प्लेट्स का या डिशेस का, तो आप सबसे पहले सबसे ऊपर वाली प्लेट को उठाते हो, उसी को वहां से रिमूव करते हो. इफ यू हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स देन यू कैन रिमूव और इंसर्ट द कार्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द LIFO. And according to its LIFO structure, the element which is inserted last is assessed first. So this is the little bit operations of the stacks. And what are the implementation of push operation? अगर आपने push operation को perform करवाना है तो उसकी implementation कैसे होगी? Here is a diagram that I have declared in this chapter. Well, the above diagram represents a stack insertion operation. In a stack, inserting and deleting of elements are performed at a single position which is known as the top. जैसे आप यहाँ पे इस diagram के अंदर देख रहे हो, on the left side of the diagram here is a top. जैसे आपने यहाँ पे चेक किया. अब second step में क्या है, उन्होंने एक 5 नेम का एलिमेंट जो है उसको इंसर्ट किया है, मतलब वहां पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है. तो अब ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक कौन सा एलिमेंट है? 5. एंड उसके बाद हमने कौन सा एलिमेंट ऐड किया? 4. तो अब टॉप के ऊपर कौन सा एलिमेंट होएगा? 4. नेक्स्ट टाइम आपने कौन सा एलिमेंट इंसर्ट किया है? 3. ठीक है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं कि अब उसके टॉप के एलिमेंट के ऊपर कौन सा एलिमेंट है? 3. So this is known as the push operation. Insertion operation can be performed using the push function. Okay, and the next topic is implementation of pop operation. मतलब कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहे हो? पॉप ऑपरेशन, that is known as the delete. मतलब you are going to delete or remove an element from the stack. New element is added at top of the stack and removed from the top of the stack as shown in the diagram below. अब हमने पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था? पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया था, लेकिन राइट नाउ हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है? पॉप ऑपरेशन. वेल, ऑन द लेफ्ट साइड जब आपके पास एक डायग्राम के अंदर उन्होंने क्या शो किया हुआ है? टॉप है, तो वहां पे आप पॉप कर रहे हो किसको? 5 के एलिमेंट को. आपने उसको 5 को पॉप करवाना है, मतलब उसको रिमूव करवाना है. तो अब यहाँ पे क्या होएगा? एन एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक. हमें पता है कि आप अपने स्टैक के टॉप पे से ही आप अपने किसी भी एलिमेंट को रिमूव करवाते हो या फिर उसको हम लोग डिलीट करवाते हैं. ठीक है, एंड डिलीट ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन LIFO प्रिंसिपल. हमें पता है कि लास्ट में जो फंक्शन जो एलिमेंट ऐड हुआ है उसी को आप सबसे पहले डिलीट करवाओगे. So it follows the LIFO principle. This operation is performed using a pop function. It means that the insertion and deletion operations are performed at the end, that is top. मतलब आपके टॉप के ऊपर जो एलिमेंट आपका पड़ा है सबसे पहले आप उसको रिमूव करवाओगे. अगर आपका 3 वाला एलिमेंट सबसे ऊपर पड़ा है तो सबसे पहले आप अपने 3 वाले एलिमेंट को जो कि ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक पड़ा है उसको आप सबसे पहले रिमूव करवाओगे. उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 4 उसको असेस कर सकते हो. उसके बाद आप 4 एलिमेंट को डिलीट करवाओगे, मतलब उसको पॉप अप फंक्शन के हेल्प से आप उसको वहां से रिमूव करवाओगे. देन आप 5 वाले एलिमेंट को आगे फर्दर उसको असेस कर सकते हो. सो हियर इज द टेबल which shows the position of top which indicates the status of the stack. मतलब अगर आपका जो स्टैक है उसका क्या स्टेटस हो सकता है, मतलब उसको अगर आपने डिफाइन करना हो एज पर द पोजीशन ऑफ द टॉप, देन हियर आर सम पोजीशंस. सो -1 वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इज योर स्टैक इज एम्प्टी, मतलब आपके स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा है. एंड 0 ओनली 1 एलिमेंट इन अ स्टैक, मतलब आपके स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा है. एंड -1 स्टैक इज फुल, मतलब उसका मतलब क्या है कि आपका स्टैक जो है वो फुल है, उसमें स्पेस नहीं है कि आप और एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सको. एंड मीन्स स्टैक इज ओवरफ्लो, मतलब कि आपकी ओवरफ्लो स्टैक उन्होंने स्टेट आपको डिफाइन कर दिया कि इसमें आप अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्टैक जो है वो कौन सी स्टेट में है? ओवरफ्लो स्टेट में. So here is the representation of stacks. We can represent stacks in 2 ways. The first one is sequential representation of stack and the second one is linked list representation of stack. These are discussed below. तो यहाँ पे आपके पास है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, मतलब कि आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली एक एरे की फॉर्म में हम अपने स्टैक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
वेल स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वन डायमेंशनल एरे। आप 1D एरे की फॉर्म में अपने स्टैक को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वन डायमेंशनल एरे इज यूज्ड टू होल्ड द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक। जैसे एक एरे होता है वो होमोजीनियस एलिमेंट्स की कलेक्शन को होल्ड करके रखता है, एज इट इज आप अपने स्टैक के एलिमेंट्स को भी 1D एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंटिंग अ स्टैक यूजिंग एरे कैन स्टोर फिक्स्ड नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। एज वी नो दैट एरे इज स्टैटिक इन नेचर। आप उसमें जितने आपने एक फिक्स्ड साइज आप अपना मेंशन करते हो कि इफ योर एरे इज गोइंग टू स्टोर द 10 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट्स, तो वो उतने फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। इन अ स्टैक इनिशियली टॉप इज सेट टू -1। टॉप इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द इंडेक्स ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, आपके जो स्टैक है उसमें आपका जो टॉप है वो किसको इंडिकेट करता है, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट पड़ा है, सबसे टॉप में है। ठीक है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग टॉप एंड को यूज करते हैं। स्टैक कैन बी डिफाइंड यूजिंग एरे एज फॉलो। तो आपका यहाँ पे उन्होंने एक मेंशन किया हुआ है स्टैक, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। इंटीजर टाइप का उन्होंने एलिमेंट नाम का एक एरे ले लिया जिसके अंदर उन्होंने साइज मेंशन किया है मैक्स, एंड इंटीजर टाइप का उन्होंने टॉप नाम का एलिमेंट लिया है। तो ये आपका एक उन्होंने स्ट्रक्चर शो किया है किसका, स्टैक का। एंड हेयर इज अ डायग्राम। उन्होंने आपको एक डायग्राम शो किया है। इम्प्लीमेंटेशन स्टैक यूजिंग एरे। अगर आप एरे की फॉर्म में अपने स्टैक के एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होएगा। एरे है आपके पास, एरे के हम लोग हमेशा उसके एलिमेंट्स की जो स्टोरेज होती है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो लेफ्ट साइड पे उन्होंने आपको इंडेक्स वैल्यूज मेंशन की हुई है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मतलब टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे 5 है उसका साइज। ठीक है, तो फर्स्ट आपका 0 के ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा है, 10, एंड फर्स्ट के ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा है, 20, एंड सेकंड के ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा है, 30। तो अब 30 जो है वो कौन सी लोकेशन पे है, टॉप, मतलब टॉप के ऊपर आपका कौन सा एलिमेंट है, 30। एंड हियर आर स्टैक ऑपरेशंस। As we studied, there are two important operations that are used for adding the elements and removing the elements. They are known as the push and pop. ठीक है, आपके पास दो मेजर ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पुश, मतलब कि किसी भी एलिमेंट को ऐड करवाना या उसको इंसर्ट करवाना, एंड द सेकेंड वन इज पॉप। दिस इज नोन एज अ पॉप ऑपरेशन, जिसको हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिमूव करवाने के लिए या उसको अपने स्टैक में से डिलीट करवाने के लिए। So following are the operations that are used in the stack. On the left side there are the operations, on the right side there are the descriptions of these operations. Peek operation. The peek function gets the top element of the stack without deleting it. उसको डिलीट करने के बिना वो उसको एक्सेप्ट करता है। एंड इज एम्प्टी क्या करेगा, वो चेक करेगा। इट चेक्स वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, मतलब आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं है। इज फुल, वो क्या करेगा, दिस फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट। सो दिस इज द लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज ऑपरेशंस। सो हियर इज अ लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक्स। तो आपके पास अगर आपने अपने स्टैक को लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा होएगा, ऐसा जो आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो किया गया है। Instead of using array, we can also use the linked list to implement the stack. ठीक है, आप अपने जो स्टैक है उसको लिंक लिस्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिंक लिस्ट एलोकेट्स द मेमोरी डायनामिकली। ठीक है, मतलब आप उसको रन टाइम पे भी जो मेमोरी है उसको एलोकेट कर सकते हो, मतलब अपने एलिमेंट्स को डिलीट करवा सकते हो या फिर उनको इंसर्ट करवा सकते हो। एंड in linked list implementation of stack, the nodes are maintained non-contagiously in the memory. Each node contains a pointer to its immediate successive node in the stack. Stack is said to be overflow if the space left in the memory heap is not enough to create a node. As we know that जो आपके पास लिंक लिस्ट है उसमें आपके एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। उनके दो पार्ट होते हैं, एक में उसकी डेटा वैल्यू होती है एंड सेकंड पार्ट में क्या होता है, दैट इज अ पॉइंटर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट।
और एज इट इज इसमें आपको यही मेंशन किया गया है कि अगर आपकी स्टैक की लिस्ट में आप नया एलिमेंट जो नया नोड है उसको अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका ओवरफ्लो हो चुका है, मतलब उसमें स्पेस नहीं है कि आप नया नोड जो है उसको क्रिएट करके उसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सको. So here is the representation of linked list implementation of stack. The topmost node in the stack always contains null in its address field. क्योंकि उसके आगे कोई element नहीं है, that's why that is depicted as null. So here is the next topic in this unit, which is multi-stacks. What is a multi-stacks? As its name is simplifying, when a stack is created using the single array, we cannot able to store large amount of data. Thus this problem is rectified using more than one stack in the same array of sufficient array. ठीक है, this technique is called as multi stack और multiple stack. मतलब जब आपके पास क्या होता है, अगर एक स्टैक आप सिंगल एरे आप जब क्रिएट करते हो तो वहां पे इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं होती है. ठीक है, यू आर नॉट एबल टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्योंकि आपके पास एक सिंगल एरे है, तो आप उसमें ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर डाटा को स्टोर नहीं कर सकते. तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल स्टैक्स. And the second point is when an array of stack n is used to represent two stacks. Say आपके पास दो stacks होंगे, stack A and stack B. Then the value of n is such that the combined size of both the stack A and stack B will never exceed n. ठीक है, stack A will grow from left to right, whereas stack B will grow in the opposite direction, that is right to left. So this is the concept of multiple stack or multi-stacks. Here are some applications of stacks. Well, following are the applications of stack. मतलब आपका जो stack है वो उसको आप किस किस फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हो या फिर उसको हम कहाँ पे कौन कौन सी situations में यूज़ कर सकते हैं. Well, following are the applications of stack. The first one is expression evaluation. आप जब expressions को evaluate करते हो तो वहाँ पे हम इसको use कर सकते हैं. Second one is expression conversion. एक तो आपके पास एक्सप्रेशन को आप इवेलुएट कर रहे हो, एक आप अपने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स या फिर प्रीफिक्स टू इनफिक्स. तो ये आपके पास कुछ फॉर्म्स हैं कि एक एक्सप्रेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. सो हियर इज द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन. There are three popular methods used for representation of an expression. फर्स्ट वन है आपके पास इनफिक्स, मतलब a प्लस बी. जो आपके ऑपरेटर्स होंगे वो आपके ऑपरेंड्स के इन बिटवीन होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफिक्स ऑपरेशन. ठीक है, एंड द प्रीफिक्स मतलब आपके पास लिखा हुआ है प्लस a एंड b, मतलब आपका ऑपरेटर जो है वो आपके ऑपरेंड से पहले राइट डाउन किया गया है. दिस इज नोन एज द प्रीफिक्स, मतलब कि आपके ऑपरेटर्स की लोकेशन क्या है, whether it is in between the operands, whether it is before your operands, whether it is after your operands. This is known as the expression representation. And postfix आपके जो notation है उसमें क्या है, a b, after that the plus operation or plus operator is placed. This is known as the postfix operation. ठीक है, operand where is the operators after the operands. So here is the conversion of infix to postfix. आपके पास convert किया गया है तो यहाँ पे उन्होंने कुछ आपके steps mention किए गए हैं जिनको follow करके आप अपने expression को infix से उसको postfix में convert कर सकते हो. Algorithm from infix to postfix. सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, कंसीडर द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इनपुट. सबसे पहले आप अपने एलिमेंट को कंसीडर करोगे एज एन इनपुट. स्टेप 2 में क्या करोगे, इफ इट इज ऑपरेंड डिस्प्ले इट. अगर आपका जो एलिमेंट है वो ऑपरेंड है तो उसको आप डिस्प्ले करवाओगे. एंड थर्ड स्टेप में क्या है, इफ इट इज ओपनिंग पैरेंथेसिस. अगर आपका जो एलिमेंट है वो ब्रेस है, मतलब ओपनिंग ब्रेस है, तो आप उसको इंसर्ट करोगे किसमें, स्टैक में. एंड फोर्थ ऑपरेशन क्या है, इफ इट इज एन ऑपरेटर. अगर आपके पास वो एलिमेंट एक ऑपरेटर आ रहा है तो आपके पास कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं. इफ द स्टैक इज एम्प्टी,
इंसर्ट ऑपरेटर ऑन द स्टैक, ठीक है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो आप अपने ऑपरेटर को स्टैक में इंसर्ट करोगे। इफ द टॉप ऑफ द स्टैक इज ओपनिंग पेरेंथेसिस, इंसर्ट द ऑपरेटर ऑन स्टैक। अगर आपका एलिमेंट जो है वो ओपनिंग पेरेंथेसिस है तो उसको आप अपने ऑपरेटर को उसमें स्टैक में इंसर्ट करोगे। एंड इफ इट हैज़ द हायर प्रायोरिटी देन द टॉप ऑफ द स्टैक, देन आप उसको कहाँ पे इंसर्ट करवाओगे, इंसर्ट द ऑपरेटर ऑन द स्टैक। एल्स डिलीट द ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले इट। रिपीट द स्टेप 4। आप अपने इन्हीं स्टेप्स को, जो आपका स्टेप 4 आ रहा है, अगर आपका एलिमेंट जो ऑपरेटर है तो आप अपने स्टेप 4 की जितनी भी कंडीशंस हैं इनको फॉलो करोगे, ठीक है। स्टेप 5 में आप क्या करोगे, इफ इट इज क्लोजिंग पेरेंथेसिस, अगर आपके पास जो एलिमेंट आया है वो क्लोजिंग पेरेंथेसिस है, देन डिलीट द ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक। आप अपने ऑपरेटर को स्टैक में से रिमूव करवाओगे एंड डिस्प्ले देम अंटिल एन ओपनिंग पेरेंथेसिस इन एनकाउंटर्ड, ठीक है। उसको आप डिस्प्ले कराओगे जब तक कि आपकी ओपनिंग पेरेंथेसिस एनकाउंटर नहीं हो जाती। डिलीट एंड डिस्कार्ड द ओपनिंग पेरेंथेसिस, ठीक है। एंड स्टेप 6 में आप क्या करोगे, इफ देयर इज मोर इनपुट देन गो टू द स्टेप 1। मतलब आपकी जो आपकी क्लोजिंग पेरेंथेसिस है उसके बाद भी आपका कोई नया एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, मतलब कि कोई और न्यू इनपुट आ रही है, तो आप अपने स्टेप 1 के थ्रू फिर से फॉलो करोगे सारी कंडीशंस को। एंड स्टेप 7 इज इफ देयर इज नो मोर इनपुट, अगर आपकी आगे इनपुट नहीं आ रही है, ठीक है, क्लोजिंग पेरेंथेसिस के बाद आपका एक्सप्रेशन खत्म हो गया, देन डिलीट द रिमेनिंग ऑपरेटर्स टू आउटपुट। So these were the some steps that you can follow in order to convert your expression. Here is an example that I have mentioned in this unit. You can follow this or you can sort out this by following these 7 steps. As it is, we have the next example, that is infix to prefix. Okay, switching to the next topic, that is infix to prefix. तो यहाँ पे आपके पास एक एल्गोरिथम के इसके स्टेप्स दिए हुए हैं कि अगर आप एक एक्सप्रेशन को इनफिक्स की फॉर्म से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो उसमें आपके पास कौन कौन से स्टेप्स होंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज इंसर्ट right parenthesis onto the stack and add left parenthesis to the end of the A. सबसे पहले आप अपनी parenthesis को sort out करोगे and the second step is scan A from right to left and repeat step 3 to 6 for each element of A until the stack is empty. Done. And third step में आप क्या करोगे, if an operand is encountered add it to B. अगर आपका कोई ऑपरेंट एनकाउंटर होता है तो उसको आप अपने B वाले स्टैक में इंसर्ट करोगे। एंड द स्टेप 4 इज इफ अ राइट पेरेंथेसिस एनकाउंटर इंसर्ट इट ऑन टू द स्टैक। अगर आपकी राइट पेरेंथेसिस एनकाउंटर होती है तो उसको आप अपने स्टैक में इंसर्ट करते हो। एंड स्टेप 5 इज इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर, अगर आपका एक ऑपरेटर जो है एनकाउंटर्ड होता है तो उसमें आपके पास दो केसेस होंगे। केस ए में क्या होएगा, डिलीट फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू बी which has same or higher precedence than the operator. Okay, and B में क्या होएगा, add operator to the stack. सबसे पहले आप अपने ऑपरेटर को स्टैक से डिलीट करवाओगे, उसको आप B में ऐड करवाओगे अगर उनकी सेम प्रेसिडेंस है। एंड दूसरी बात आप क्या करोगे, स्टेप बी के अकॉर्डिंगली ऑपरेटर को स्टैक में ऐड करवाओगे। एंड स्टेप 6 इफ लेफ्ट पेरेंथेसिस एनकाउंटर्ड, अगर आपके पास अब लेफ्ट पेरेंथेसिस एनकाउंटर होती है तो आप क्या करोगे, उसको डिलीट करवाओगे फ्रॉम द स्टैक, डिलीट फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड टू बी। डन। एंड रिमूव द लेफ्ट पेरेंथेसिस, आपकी लेफ्ट पेरेंथेसिस भी आपके रिमूव हो जाएगी, मतलब आपका एक्सप्रेशन जो है वो वहाँ पे खत्म हो गया है, तो आप एग्जिट करोगे स्टेप 7 के अकॉर्डिंगली। सो दीज वर द स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स। And the next topic is prefix to infix. प्रीफिक्स में क्या आता है, सॉरी पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। आप अपने पोस्टफिक्स में से अगर उसको इनफिक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो उसमें क्या कहेंगे। द स्टेप 1 इज व्हाइल देयर आर इनपुट सिंबल लेफ्ट, सबसे पहले आपके पास इनपुट सिंबल्स हैं। सेकंड आप क्या करोगे, रीड द नेक्स्ट सिंबल फ्रॉम इनपुट, आप अपने नेक्स्ट सिंबल को इनपुट से पहले रीड करोगे, उसको स्कैन करवाओगे। थर्ड क्या करोगे, इफ द सिंबल इज इन
ऑपरेंड, अगर आपका वो सिंबल जो इनकाउंटर हो रहा है वो एक ऑपरेंड है तो उसको आप कहाँ पे इंसर्ट करोगे, अपने स्टैक में। एंड स्टेप 4 के अकॉर्डिंगली क्या करोगे, अदरवाइज द सिंबल इज एन ऑपरेटर, अगर आपका सिंबल जो है वो ऑपरेटर है, ठीक है। तो स्टेप 5 के अकॉर्डिंगली क्या करोगे, इफ देयर आर फ्यूअर देन 2 वैल्यूज ऑन द स्टैक, अगर आपके वहां पे शो हो रही है एरर, इनपुट नॉट सफिशिएंट वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन। एल्स, अगर आपका दूसरा ऑपरेशन इनकाउंटर हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, डिलीट द टॉप 2 वैल्यूज फ्रॉम द स्टैक, डन, या फिर पुट द ऑपरेटर विद द वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्म अ स्ट्रिंग, तो आपकी वहां पे एक स्ट्रिंग बन जाएगी। एंड सी के अकॉर्डिंगली इनकैप्सुलेट द रिजल्टेड स्ट्रिंग्स विद पैरेंथेसिस, डन। एंड स्टेप डी के अकॉर्डिंगली क्या करोगे, इंसर्ट द रिजल्टेड स्ट्रिंग बैक टू द स्टैक, डन। एंड स्टेप 7 के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इफ देयर इज ओनली 1 वैल्यू, अगर पहले हमारी बात हो रही थी 2 वैल्यूज की, लेकिन यहाँ पे है कि अगर आपके पास ओनली 1 वैल्यू है आपके स्टैक के अंदर, दैट वैल्यू इन द स्टैक इज डिजायर्ड इन फिक्स स्ट्रिंग, क्योंकि वहां पे एक ही वैल्यू है। एंड स्टेप 8 के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, इफ देयर आर मोर वैल्यूज इन द स्टैक, देन वहां पे क्या एरर शो होगी, द यूजर इनपुट हैज टू मेनी वैल्यूज। सो दीज वर द स्टेप्स फॉर पोस्ट फिक्स सेपरेशन. And here is the example that you can resolve by following these steps. And the next topic is parenthesis checker. अगर आप कोई एक parenthesis को चेक करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप कौन सा मॉड्यूल यूज कर सकते हो, तो उसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, यू कैन डेवलप अ पैरेंथेसिस चेकर विदाउट यूजिंग द स्टैक एज वेल, आप स्टैक को बिना यूज किए अपना पैरेंथेसिस चेकर जो है उसको आप डेवलप कर सकते हो, बट यूजिंग स्टैक हैव सेवरल एडवांटेजेस। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले अगर आप पैरेंथेसिस को चेकर को डेवलप करने हो तो उसमें कौन से आपके मेरिट्स हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज using a stack to balance parentheses will help you balance the different types of grouping operators like square braces, curly braces and round braces, and verify that they are correctly nested। मतलब अगर आपके पास जो ब्रेसेस होती हैं तो वो आपकी किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ग्रुपिंग में, आपके कोड को चंक्स क्रिएट करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको एनालिसिस करने में, उनको डिफ्रेंशिएट करने में ये आपकी हेल्प करती हैं। बट मेक श्योर कि आप उनको प्रॉपरली, उनको करेक्ट वे में उनको नेस्ट कर रहे हो, उनको यूज कर रहे हो। एंड सेकेंड पॉइंट इज यूजिंग अ स्टैक विल ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कोड। राइट, आपके कोड की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है with the help of parenthesis checker, but developing with the help of a stack. And next topic is balanced parenthesis checker using the stack. तो यहाँ पे आपके पास एक एल्गोरिथम है जो आपको theoretically जिसके steps मैंने mention किए हुए हैं। The algorithm to check for balanced parenthesis with the stack is given below. First one is when any open symbol, that is round brace, curly brace, square brace is encountered, it will be pushed in the stack. अगर आपकी कोई भी लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है जिसको हम ओपनिंग पैरेंथेसिस बोलते हैं, अगर वो एनकाउंटर होती है तो उसको आप कहाँ पे पुश करते हो, स्टैक में। एंड सेकेंड पॉइंट में क्या है, इफ एनी क्लोज सिंबल, दैट इज अब आपकी यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस जो जिसको हम क्लोजिंग ब्रेस भी बोलते हैं, वेदर इट इज राउंड ब्रेस, वेदर इट इज कर्ली ब्रेस, वेदर इट इज स्क्वायर ब्रेस इज एनकाउंटर्ड, एनी ऑफ द 3 कैन हैपन, ठीक है। एंड third point में क्या था, top of the stack is checked if the encountered close symbol matches with its open symbol, then open symbol which is at top of the stack is popped out, मतलब वो आपका delete हो जाएगा। And the next case is the top of the stack is checked if the encountered close symbol doesn't match with its open symbol, then -1 is returned as there is no matching symbol, done। अगर ये भी आपके पास केस नहीं है तो थर्ड केस में क्या होएगा, द टॉप ऑफ द स्टैक इज चेक्ड, इफ दैट स्टैक इज एम्प्टी देन -1 इज रिटर्न्ड एज देयर इज नो ओपन सिंबल इन द स्टैक। सो दिस इज द बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेकर यूजिंग द स्टैक्स, एंड इट वाज द एंड ऑफ दिस यूनिट। So thank you so much. I hope all the topics are properly defined in this chapter. Thank you so much.